Very good morning. A very good morning, dear students. In this lecture, I will teach you the concept of shear force and bending moment diagram. Before to discuss the shear force as well as bending moment diagram, we have to know about the basic definition of shear force and bending moment diagram. Bending moment. So, what is the shear force? As you know, there are two terms, that is the shear as well as force. Force which change or try to change the state of the objects. Suppose that if I am talking about the shear force, it means that a force will act tangentially to the cross section of the beam. Now here you can see the definition of shear force. Shear force at a section in a beam. Shear force at a section in a beam is the force that is trying to shear off the section and is obtained as the algebraic sum of all the forces including the reactions acting normal to the axis of the beam either to the left or right of the section. Okay, this was the first definition, and after doing the algebraic sum of the all the vertical or transverse forces, then the next procedure to find the shear force at the section is to imagine a cut in a beam at a section considering either the left or right portion and find the algebraic sum of all forces normal to the axis. Okay. तो बेसिकली shear force क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ. shear force now see, suppose that एक कोई बीम है, ठीक, कोई बीम ए बी है, ठीक है, कोई बीम ए बी है, इस पे वर्टिकल लोड लग रहा है. इस पे क्या लग रहा है? वर्टिकल लोड लग रहा है. एक वर्टिकल लोड ये हो गया, एक वर्टिकल लोड ये हो गया, एक वर्टिकल लोड ये हो गया. ठीक है, ए में सपोर्ट है तो एक रिएक्शन यहाँ पे हो गया और बी पे दूसरा सपोर्ट है बीम का, तो एक रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया. आर ए ये हो गया और आर बी ये हो गया. ठीक है, तो ये बीम रखा हुआ है ए और बी सपोर्ट पे, और ए और बी सपोर्ट पे इस पर रिएक्शन क्या मिल रहा है, आर ए और आर बी मिल रहा है. ठीक है, एक बीम है ये सिंपल कोई बीम है. ठीक, अब ये बीम जो है इस तरीके से ये ए सपोर्ट पे रखा है, बी सपोर्ट पे रखा है. ठीक है, तो सपोर्ट पे रखा है तो ऑब्वियस सी बात है ए सपोर्ट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा और बी सपोर्ट पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा. और इस बीम पे F1, F2 और F3 these are the vertical forces which are acting in vertical direction on the beam. Now suppose that if we have to calculate the value of shear force. shear force का हम क्या बताएं? shear force क्या होता है? किसी बीम पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगता है जो बीम को shear ऑफ करने की कोशिश करता है. ठीक है, बीम को shear ऑफ करने की कोशिश करता है मतलब एक या तो बीम की ये वाली कंडीशन इस तरीके से shear करने की कोशिश करेगा. ठीक है, shear ऑफ करने को कंडीशन है ये इस तरीके से, या तो shear ऑफ करने की कोशिश ये इस तरीके से करेगा. दो कंडीशन हो सकता है. ठीक है, दो कंडीशन हो सकती है. ठीक, अब सपोज डेट हम बात करते हैं shear फोर्स की, तो shear फोर्स के डेफिनेशन बताया है. shear फोर्स क्या होता है? shear फोर्स किसी भी बीम के
वर्टिकल डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, vertical direction to the axis of the beam, to the axis of the beam, ठीक, to the axis, in vertical direction to the axis of the beam, the algebraic sum, the algebraic sum, the algebraic sum of all the forces, all the forces including reaction, including reaction, ठीक, either left or right to the section of beam, ठीक. The vertical direction, in vertical direction, in vertical direction to the axis of the beam, the algebraic sum of all the forces including reaction either left or right to the section of the beam is known as shear force, ठीक. Focus on this term, that is algebraic sum. Algebraic sum, it means if you are able to calculate the algebraic value of the vertical or transverse load or forces with respect to the axis of the beam, then definitely you can calculate the shear force value at a particular point or the along the section. If you are able to calculate the algebraic sum, it means कि algebraic sum अगर आपको आता है तो shear force की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. लुक दिस डायग्राम, आई थिंक ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ देख लो, ठीक. ओके, अब अलजेब्रिक सम वगैरह कैसे लेते हैं. सपोज डेट हम एक बीम ले लेते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे हम बीम ले लेते हैं, ठीक है. एक बीम ले लेते हैं, एक इस पे मान लो आर ए फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक रिएक्शन है, सपोर्ट एक ए सपोर्ट है और एक बी सपोर्ट है, ठीक. और एक बी सपोर्ट पे क्या लग रहा है, आर बी लग रहा है. इज इट क्लियर, आर बी लग रहा है एक, ठीक, आर बी. इज इट क्लियर. अब इस पे एक पॉइंट लोड इधर लग रहा है सी पर और एक पॉइंट लोड इधर लग रहा है डी पर, सी और डी पर लग रहा है. और जो डिस्टेंसेज है मान लो 2-2 मीटर का है, ठीक है. 2-2 मीटर की डिस्टेंसेज है, 2-2 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक. 2 मीटर का डिस्टेंस है. अब सपोज डैट हमको इस वाले सेक्शन के अलॉन्ग हमको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, इस वाले सेक्शन के अलॉन्ग, ठीक है. तो या तो हम इस वाले सेक्शन के लेफ्ट में जितने फोर्सेस हैं उसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ठीक.
या तो इस सेक्शन के राइट में अलजेब्रिक सम ले लेंगे किसका, ऑल द फोर्सेस एट राइट सेक्शन। तो इस सेक्शन पे अगर हमको शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस वाले सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस वाले सेक्शन पे, तो अगर हम लेफ़्ट में फोर्सेस देखें तो एक रिएक्शन फोर्स ये है और एक रिएक्शन फोर्स ये है, ठीक। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम सेक्शन के लेफ़्ट साइड में फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लेते हैं तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक। और जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम कैसे लेते हैं, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर राइट साइड में फोर्सेस का समेशन कर रहा है, अलजेब्रिक सम कर रहा है, तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लेते हैं उनको पॉजिटिव लेंगे और वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये हमारा सिंबॉलिकल या साइन कन्वेंशन है शियर फोर्स का। तो एक बार फिर से समझा देते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स, साइन कन्वेंशन ऑफ शियर फोर्स। तो अगर किसी सेक्शन के अलॉन्ग शियर फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, किसी पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, मान लो इस पॉइंट पे शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, पॉइंट नंबर बी, तो इस सेक्शन के लेफ़्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं, लेफ़्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं भाई, ठीक है, लेफ़्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं या राइट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, शियर फोर्स होता है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि साइन कन्वेंशन आखिर में क्या होगा, साइन कन्वेंशन। तो अगर हम लेफ़्ट सेक्शन के लेफ़्ट में फोर्सेस का अलजेब्रिक सम ले रहे हैं तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस होते हैं उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक। अब इस सेक्शन के जो राइटवर्ड डायरेक्शन में जो राइटवर्ड डायरेक्शन में इस फोर्सेस का अलजेब्रिक सम लेंगे तो जो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे उसको फोर्स क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक। ये रही बात भाई शियर फोर्स की। आई थिंक शियर फोर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। ये शियर फोर्स की डेफिनेशन ऐसे है, इसको ऐसे ही एकदम एज इट इज़ ऐसे कॉपी कर सकते हो शियर फोर्स की डेफिनेशन को, ये वाली, ठीक। शियर फोर्स अभी आगे इसका साइन कन्वेंशन इसमें भी फिर से आएगा। तो शियर फोर्स एट अ सेक्शन इन अ बीम इज़ द फोर्स। शियर फोर्स किसी भी बीम के सेक्शन पे वो फोर्स होता है जो कि डेट इज़ ट्राइंग टू शियर ऑफ द सेक्शन, जो कि शियर सेक्शन जो बीम का सेक्शन होता है उसको शियर ऑफ करने की कोशिश करता है। और फिर मिलता है क्या, कैसे मिलता है, एंड इज़ ऑब्टेन्ड एज द अलजेब्रिक सम, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड एज द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम पे फोकस करो, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड एज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अलजेब्रिक सम होता है शियर फोर्स, शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम, ठीक है। शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है
all the forces including the reaction acting normal to the axis of the beam either to the left or right of the section। इसमें रिएक्शन फोर्स भी होंगे और जो फोर्सेज लग रहा है अलग से लोड वो भी होंगे, ठीक है। या तो सेक्शन के लेफ़्ट साइड में या सेक्शन के राइट साइड में, ठीक है। सेक्शन के लेफ़्ट साइड में जितने फोर्सेज लगेंगे उनका अलजेब्रिक सम, सेक्शन के राइट साइड में फोर्सेज लगेंगे उनका अलजेब्रिक सम, दोनों में से किसी एक साइड में हम अलजेब्रिक सम निकाल लेते हैं तो वही शियर फोर्स हो जाता है, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोसीजर टू फाइंड द शियर फोर्स एट अ सेक्शन, तो कैसे प्रोसीजर शियर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए, शियर फोर्स का कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर होता है। अगर कोई बीम है उस बीम पे आप सिंपली एक क्रॉस सेक्शन कट कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस सेक्शन इस तरीके से कट कर लीजिए, इस तरीके से क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो या तो इसके लेफ़्ट में या तो इसके राइट में। लेफ़्ट में अलजेब्रिक सम निकाल दो शियर फोर्सेस का सारे का, इतने लोड है, या राइट में अलजेब्रिक सम निकाल दो सारे फोर्सेस का, वही क्या हो जाएगा, शियर फोर्स हो जाएगा, ठीक। Here you can see the sign convention for the shear force। shear force के साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन की अगर बात करें तो एक पॉजिटिव शियर स्ट्रेस और नेगेटिव शियर स्ट्रेस, ये चीज़ें। अगर हम देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट and we select the left region of the section, तो इस केस में क्या होगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हम बात करें जब हम राइट सेक्शन का राइट साइड कंसीडर करते हैं तो उस केस में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉजिटिव शियर फोर्स की हम बात कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड में ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है तो ये पॉजिटिव है, और क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में जब नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स है तो ये पॉजिटिव है। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है कि ये वाला जो रीजन है भाई, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में है तो पॉजिटिव फोर्स है। ये वाला भाई क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है तो ये पॉजिटिव है। इट मीन्स कि क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में जब भी हम अलजेब्रिक सम करेंगे, क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में जब भी हम अलजेब्रिक सम करेंगे, लेफ़्ट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन जब भी हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे तो इस केस में क्या होगा, हमेशा ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको हम पॉजिटिव कहेंगे और नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा इसको हम नेगेटिव कहेंगे। वही डायग्राम में बताया गया है। तो पॉजिटिव शियर फोर्स लेफ़्ट साइड में ऊपर के डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा और पॉजिटिव शियर फोर्स राइट साइड में नीचे के डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता है। उसी तरीके से नेगेटिव शियर फोर्स की वैल्यू जब लेफ़्ट साइड की बात करेंगे तो वो नीचे के डायरेक्शन में, और राइट साइड में ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको
नेगेटिव फोर्स कंसिडर किया जाता है। अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन इतना ज़रूरी क्यों है। साइन कन्वेंशन इतना ज़रूरी क्यों है भाई। एक बार लेफ़्ट में हम प्लस माइनस कर ले रहे हैं, उसका राइट में उल्टा चीज़ कर ले रहे हैं। तो लेफ़्ट साइड में जब हम फोर्स को इसको प्लस कह देते हैं, इसको हम माइनस कह लेते हैं, और राइट साइड में इसको हम प्लस कह लेते हैं और इसको माइनस कह लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप अलजेब्रिक सम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस इस तरीके से करके आपकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। और जब अलजेब्रिक सम के बाद वो वैल्यूज अगर लेफ़्ट साइड में कैलकुलेशन कर रहा हो, अगर वो प्लस आ रही है, इसका मतलब जो शियर फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और माइनस आ रही है तो इसका मतलब शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन ये किस केस में, जब आप लेफ़्ट क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सपोज डैट क्रॉस सेक्शन के राइट साइड में कैलकुलेशन कर रहा हो तो वैल्यू आ रही है नीचे के डायरेक्शन में, तो ये प्लस हो जाएगा, और ऊपर के डायरेक्शन में जब होगी तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ शियर फोर्स का कैलकुलेशन का, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन। अब दिमाग में बात आती है कि भाई शियर फोर्स का कैलकुलेशन हो गया। मान लो शियर फोर्स के लिए कोई बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे कोई बीम है, इस पर 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पर भी 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ वैल्यू निकल रही है, तो आर ए प्लस आर बी से आप पहले 10 ये ए है, ये बी है, सी और डी। तो सी पे भी कुछ लोड लग रहा होगा, तो सारे फोर्सेज एक क्रॉस सेक्शन कट कर लो, इसके दो फोर्सेज का सम कर लोगे तो ये इस पर शियर फोर्स मिल जाएगा। लेफ्ट साइड वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करना, अगर ये अलजेब्रिक सम मिल लोगे तो राइट साइड वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करोगे। अब आती है भाई कि बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या है। बेंडिंग मोमेंट मतलब कि मोमेंट तुम जानते ही हो, मोमेंट एक फोर्स होता है, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो उस फोर्स की वैल्यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मोमेंट मिलता है। ठीक, क्या मिलता है, मोमेंट। ठीक है, इस तरीके से हमको मोमेंट मिल जाता है। ठीक, अब मोमेंट मिलता है तो मोमेंट का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं रोटेशनल इफेक्ट देता है, रोटेशनल इफेक्ट देता है बॉडी को। ठीक, तो रोटेशनल इफेक्ट का रोटेशन का अगर मेजरमेंट की अगर हम बात करें, अगर रोटेशन की हम मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन की बात करें अगर, तो ये जो है किसके थ्रू होता है, मोमेंट के थ्रू, मोमेंट के थ्रू होता है। ठीक, तो इफ वी आर कैपेबल, इफ we have calculated the value of moment, then it is damn sure that you have calculated also that scale on the behalf of you can you may know about the measurement of the rotation. सो बेंडिंग मोमेंट की हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा मोमेंट होता होगा बीम पे एक ऐसा मोमेंट होता है जो बीम को बेंड करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब बीम को बेंड करने की टेंडेंसी होगी तो या तो बीम ऐसे बेंड करेगी या तो बीम ऐसे बेंड करेगी। ठीक, दो तरीके से बेंड हो सकता है। तो बीम के बेंड करने की टेंडेंसी होती है मोमेंट में, उस मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट। नाउ हियर
You can see the definition of the bending moment. Bending moment at a section in a beam is the moment. किसी भी बीम के सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट जो है एक मोमेंट होता है जो कि उस बीम को बेंड करने के लिए ट्राई करता है उसको। और ये कैसे निकालते हैं, ये भी अलजेब्रिक सम होता है सारे मोमेंट्स का अबाउट द सेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इंक्लूडिंग द रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बीम आइदर टू द लेफ्ट और द राइट। तो जैसे शियर फोर्स का अलजेब्रिक सम करते थे किसी भी सेक्शन के, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, उसी तरीके से अब आप किसी भी सेक्शन के अबाउट अगर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट, तो जितने फोर्सेस लग रहे हैं ठीक है, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस केसेस में या तो लेफ्ट या तो राइट, ठीक। या तो लेफ्ट में जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो जितने मोमेंट दे रहे, एक ये फोर्स मोमेंट देगा भाई, ठीक है, डिस्टेंस ये रहेगी, एक ये फोर्स मोमेंट देगा, डिस्टेंस ये रहेगी, एक ये फोर्स मोमेंट रहेगा, डिस्टेंस ये रहेगी। तो ये जितना मोमेंट देगा उसका हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे। मान लो हमको मोमेंट दे रहा है m1 प्लस m2 माइनस m3, तो इसको जब अलजेब्रिक सम करोगे तो इसकी वैल्यू सिग्मा m के बराबर आएगी। और ये सिग्मा m जो है इस सेक्शन पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा, ठीक। फिर बात आती है बेंडिंग मोमेंट के भी साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट। तो बेसिकली द बेंडिंग मोमेंट इज कंसीडर्ड एज sagging bending moment if it tends to bend the beam to a curvature having convexity at the bottom as shown in the figure given below. Sagging bending moment is considered as positive bending moment. Okay, as you can see this diagram, ये डायग्राम में आपको ये जैसे सैगिंग वाला जो पोर्शन मिल रहा है, इससे पहले बीम जो है आपका इस तरीके से रहा होगा कुछ, ठीक है, ये बीम कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब इस बीम पे इस क्रॉस सेक्शन पे ये मोमेंट अगर इस क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट अगर दे रहा है, इधर लेफ़्ट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है और राइट साइड में काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इस केस में क्या होता है, बीम हमारी बेंड होती है। और बीम बेंड होती है तो किस तरीके से बेंड होती है, वो हमारी इस तरीके से बेंड होती है, ठीक। जब बीम इस तरीके से बेंड होती है तो यहाँ पे बॉटम पोर्शन पे यहाँ पे क्या आ जाता है, एक बीम के बॉटम पोर्शन पे एक कॉन्वेक्सिटी आ जाती है, कॉन्वेक्सिटी शेप की कॉन्वेक्सिटी आ जाती है, ठीक है, कॉन्वेक्सिटी आ जाती है, ठीक। अब कॉन्वेक्सिटी आने के साथ साथ अगर हम बात करें इसकी और भी कि इसका एक तो ये टॉप लेयर होगा बीम का और एक ये क्या होगा, बॉटम लेयर। तो टॉप लेयर जो है इसका, ये टॉप लेयर बीम की बात करें सैगिंग के केस में, तो ये क्या होगा, कंप्रेशन में रहता है, ठीक है, कंप्रेशन में रहता है। और सॉरी बॉटम लेयर का, ये बॉटम लेयर है। और टॉप लेयर की हम बात करें तो ये किस केस में रहेगा, ये वाला, ये रहेगा एक्सपेंशन में, ठीक है, इस तरीके से। अब ये तो हम कहते हैं भाई सैगिंग मोमेंट जो होता है पॉजिटिव मोमेंट, सैगिंग मोमेंट जो होता है हमेशा कैसा नेचर का होता है, सैगिंग को हमेशा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं, ठीक।
इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि जो सैगिंग होता है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो हमेशा जो है जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो हमेशा जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हमेशा, और काउंटर क्लॉकवाइज जो होगा उसको हम नेगेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव। तो जब इस तरीके से लेफ़्ट साइड में पॉजिटिव या क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और राइट साइड में नेगेटिव या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, तो हमेशा क्या होता है, सैगिंग फॉर्म होता है। ठीक है, सैगिंग, जैसे स्माइलिंग फेस बनती है ना, स्माइलिंग फेस यहाँ पे बनती है, स्माइलिंग फेस का सिंपल यही होता है ना। तो एस फॉर स्माइलिंग और एस फॉर सैगिंग, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक, next sign convention for the bending moment, when the beam will bend in such a manner that the beam tends to bend the beam to a curvature having a convexity at the top। ठीक है, convexity at the top। और वह बीम पे मोमेंट लग रहा है, बीम पे मोमेंट लग रहा है और इस तरीके से ये बेंड कर जा रहा है टॉप पर एज अ कॉन्वेक्सिटी साइन, इस तरीके से। ठीक, तो क्रॉस सेक्शन कट कर लो, यहाँ पे इसको मोमेंट इधर कुछ ऐसे मिलेगा काउंटर क्लॉकवाइज में, और यहाँ पे मोमेंट जो है कैसे मिलेगा, क्लॉकवाइज में। तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये क्या हो गया, काउंटर क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का अगर बेंडिंग मोमेंट इस तरीके से बीम बेंड होती है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं हॉगिंग। क्या बोलते हैं, हॉगिंग। ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट की पहचान होती है, हॉगिंग। तो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट में जो टॉप पोर्शन बीम का होता है वो कॉनकेविटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉनकेविटी रिप्रेजेंट करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। इस केस में क्या होता है, किसी भी बीम के जो लेफ़्ट साइड में जो मोमेंट लगता है वो काउंटर क्लॉकवाइज होता है, नेगेटिव, और राइट साइड में जो होता है क्लॉकवाइज होता है, पॉजिटिव। तो अभी तक हमको ये पता चल गया कि किसी क्रॉस सेक्शन, कोई बीम है, किसी क्रॉस सेक्शन के अगर लेफ़्ट साइड में मोमेंट क्लॉकवाइज और राइट साइड में मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से लग रहा है, तो ये वाला जो मोमेंट देगा, बेंडिंग मोमेंट देगा, ये बेंडिंग मोमेंट एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, सैगिंग। और अगर क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव मोमेंट, और राइट साइड में क्लॉकवाइज पॉजिटिव मोमेंट, तो ये क्या देगा हमको, हमेशा हॉगिंग देगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर क्या होता है। पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर, जब हम एस एफ डी के बाद जैसे पी एम डी ड्रा करते हैं तो क्या होता है, मान लो एक लाइन ये मिल रही BMD में, फिर एक लाइन यहाँ पे मिल रही है, फिर ऐसे यहाँ पे मिल रही है, तो ये वाला तो भाई हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट वाला रीजन हो गया, ये वाला। ठीक, बट ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट वाला रीजन हो गया। तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। तो जिस पॉइंट पे at which point bending moment sign changes, at which point bending moment sign changes,
तो बेंडिंग मोमेंट का साइन जिस पॉइंट पे चेंज होता है, साइन चेंज होता है जिस पॉइंट पे, एट विच पॉइंट, वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ओके। और जिस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू, जिस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है, उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। नाउ फ्रॉम दिस स्लाइड यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और इन्फ्लेक्शन पॉइंट। It is a point on the bending moment diagram where bending moment changes the sign from positive to negative or vice versa. It is also called as inflection point. At the point of inflection point or counterflexure, the bending moment is 0. तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पे जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। अब हम बात करेंगे शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है। कोई शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स की तो हम बात कर ही लिए, शियर फोर्स की ऑलरेडी हम बात कर ली है। शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है ठीक। शियर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक, शियर फोर्स ये सिंपली क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। ठीक, ऑफ all the transverse load, either to the left or right of the section of the beam। ठीक, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, आई थिंक ये सब सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब पता है कि जब तुम डायग्राम ड्रा करते हो तो हम शियर फोर्स डायग्राम की बात करें, अगर शियर फोर्स डायग्राम क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, शियर फोर्स डायग्राम की हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा डायग्राम जिस पे तुम शियर फोर्स का वेरिएशन देख सको। तो किसी बीम पे जब तुम्हारे कोई छत पड़ रही है या कहीं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो उस जब छत पड़ती है या बिल्डिंग बनता है, तो बिल्डिंग बनने के लिए एक रूम जब पहले बनता है तुम्हारा, तो रूम जब बनाते हैं तो उसके लिंटर पड़ती है। ठीक है, तो उस पर बीम का सपोर्ट दिया रहता है। तो बीम पे भाई कई सारे लोड लगेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कम लोड लगेंगे। ठीक है, तो ये हर लोड की कुछ ना कुछ किलो न्यूटन या न्यूटन में कुछ वैल्यू होगी, किलो न्यूटन या न्यूटन वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू जो है अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बीम, उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक, तो बीम के लेंथ के अक्रॉस उसमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो लेंथ ऑफ द बीम हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं भाई। लेंथ ऑफ बीम को क्या कर लेते हैं, एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं, एल से रिप्रेजेंट कर लो इसको। ठीक है,
और वाई एक्सिस पे एब्सिसा पे वाई एक्सिस पे हम क्या कर लेते हैं, शियर फोर्स को लिख लेते हैं, शियर फोर्स एज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, एज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, शियर फोर्स डायग्राम की अगर हम बात कर रहे हैं तो शियर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे तो कोई अगर बीम है, इस बीम पे रिएक्शन फोर्स कुछ आर ए लग रहा है, इस बीम पे रिएक्शन फोर्स दूसरे पॉइंट पे आर बी लग रहा है, इसके बीच में कुछ पॉइंट कांटेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए अगर हम इस पॉइंट के बीच में शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे, यहाँ पे या इसके बीच से दो सेक्शन के बीच के शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे या इसके बीच में ड्रा करेंगे, तो हमको हर पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू चाहिए। शियर फोर्स की वैल्यू ईजिली कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक सेक्शन कट कर लेंगे, एक सेक्शन यहाँ पे कट कर लो, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम कर लो। ठीक, अलजेब्रिक सम कर लो तो इस पॉइंट पे तुमको क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स मिल जाएगा। ठीक, और इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई फोर्स है नहीं, तो जो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स निकलेगा वही क्या हो जाएगा, शियर फोर्स। ठीक है, तो हम मोस्टली क्या करेंगे, बीम को जब शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा हम किधर से किधर मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं, बट एक चीज़ लेके चलोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो ये साइन हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्लॉक वाइज को हम पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव। ठीक, राइट टू लेफ़्ट में करोगे तो जो फोर्स रहेगा ये नेगेटिव रहेगा और ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और मोमेंट की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या करेंगे, नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, अपने यहाँ पे हम स्लाइड पे जाते हैं। A diagram in which the ordinate represents shear force and abscissa represents the position of the section is called a shear force diagram। बात वही है, तो ये हो गया। ये ऑर्डिनेट हो गया भाई, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट पे हम हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, एब्सिसा हो गया, ये वाई। ठीक है, तो एब्सिसा पे डिपेंडेंट रखते हैं तो शियर फोर्स जो है वो आपकी डिपेंडेंट ही वेरिएबल है, इसलिए वाई एक्सिस पे रखे हैं। अब क्या है, जब शियर फोर्स की वैल्यू को अब हम देखेंगे कि बीम की पोजीशन के हिसाब से शियर फोर्स की वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है, शियर फोर्स की वैल्यू वेरिएशन आएगा, शियर फोर्स की वैल्यू में इस तरीके से वेरिएशन आएगा। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू वेरिएशन आएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर शियर फोर्स डायग्राम बनता है तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस यहाँ पे बोलेंगे, ये पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, अगर ये नीचे भी कुछ जाएगा तो ये क्या बोल देंगे, नेगेटिव बोल देंगे। ठीक, ये शियर फोर्स डायग्राम की बात हो गई। अब इसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिर आता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में बी डिफाइंड एज अ डायग्राम इन विच ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स बेंडिंग मोमेंट। तो ऑर्डिनेट इट मीन्स की डिपेंडेंट क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेट इट मीन्स की डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अब डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, अब हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, अब हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई बेंडिंग मोमेंट। ये डिपेंडेंट क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन ऑफ द बीम पे, पोजीशन ऑफ द बीम पे। अब हर पोजीशन ऑफ द बीम पे किस तरीके से फोर्स लग रहा है, किस तरीके से फोर्स लग रहा है, उसी के हिसाब से हमको बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन मिलेगा।
ये बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन जब मिलेगा लेंथ के हिसाब से, तो हो सकता है इस तरीके से कुछ मिले। तो ये वाला जो पोर्शन है हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो रीजन होगा, ये हमेशा हमारा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे अभी, सैगिंग। और नीचे वाला जो रीजन है एक्स एक्सिस के नीचे अगर बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, मान लो यहाँ पे एक्स एक्सिस के नीचे, ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे अगर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या होगा, हॉगिंग। तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, सैगिंग, ठीक। और नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, ये क्या हो गया, हॉगिंग, ठीक है। हॉगिंग इट मीन्स, ये सैगिंग मतलब बेंड, इस तरीके से बेंड हो जाएगा, स्माइलिंग फेस, ऐसे बीम बेंड होगा, ठीक। और नेगेटिव मीन्स ऐसे बीम बेंड हो जाएगा फिर, अब भाई ऐसा होता है कि जैसे शियर फोर्स डायग्राम हमको पता है एसएफडी, तो इसको देख के हम बीएमडी भी ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक नोट्स होगा, हम डिस्कस करेंगे आपके साथ बाद में। सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड केसेस देख सकते हैं। कैंटिलीवर की अगर हम बात करें कि इस कैंटिलीवर की कैसे डिस्कस करें अगर हम, तो कैंटिलीवर ए पॉइंट और कॉन्सेंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड, तो इसका एक एंड क्या होता है, फिक्स होता है, और यहाँ पे कोई लोड लगा सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसा केस हम डिस्कस कर लें जिसका हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करें, ठीक। दूसरा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द स्पैन, या तो हम यूडीएल की बात करें, कोई बीम है इस तरीके से और इस पर यूडीएल लगा है, इसका एसएफडी बीएमडी हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। लोड इंटेंसिटी हो गया, ठीक। सेकेंड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, कोई ओके, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ओवर एंटायर स्पैन, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इस तरीके से कुछ हो जाएगा, यहाँ पे एंटायर स्पैन में जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो जाएगा, इसका हम एसएफडी ड्रा कर सकते हैं, ठीक। फिर सिंपली सपोर्टेड बीम में ए पॉइंट और कॉन्सेंट्रेटेड लोड आर एट फ्री। सिंपली सपोर्टेड बीम में हो सकता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड यहाँ पे लगा दे, इसको हम फ्री कर दें, यहाँ फ्री एंड पे, ठीक है, इस तरीके से। इसका शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी बीएमडी फॉर द स्टैंडर्ड केसेस, इन सारे केसेस का हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द एंटायर स्पैन, ये सब हो ही चुका है। एंड एक्सटर्नल मोमेंट, और क्या भी हो सकता है, ये कोई जैसे कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे हम मोमेंट वगैरह भी लगा सकते हैं, हर एक पॉइंट पर मोमेंट लग सकता है, ठीक है। अब मोमेंट के केस में मान लो बीम है, यहाँ पर रिएक्शन लग रहा है, इस पॉइंट पर कुछ मोमेंट दे रहा है, इधर कुछ मोमेंट दे रहा है, तो हर पॉइंट में इसकी एम की वैल्यू होगी ना भाई, तो ये केवल लोड ना देखिए, ये न्यूटन मीटर में देगा, तो हमको मोमेंट नहीं निकालना पड़ेगा, ये मोमेंट ही है इस पॉइंट पे। नो सी व्हाट इज द कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम का एक एंड फिक्स होता है, ये फिक्स सपोर्ट होता है और ये फ्री होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है कैंटिलीवर। A cantilever beam is that type of beam whose one end is fixed and another one end is free.
Example of a cantilever beam is given over here. Car parking roof is also an example of cantilever beam. ये सारे बीम के एग्जाम्पल्स हैं. Okay. Now I want to aware you about the shear force diagram as well as bending moment diagram with the help of this notes. In this notes you can see this table already discussed to you, and I want to repeat you because from this table you can remember easily that how the roller support or hinge support or fixed support gives the reaction in one direction, two direction or more than two direction. Now see, अगर हम बात कर ले भाई, यहाँ पे देखो, बात कर ले रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट की भाई साहब यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या बात कर रहे हैं. और सी, रोलर सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे रोलर सपोर्ट की बात कर रहे हैं. तो रोलर सपोर्ट में अब यहाँ पे टेबल में तुम देखो, एक तरफ मोशन ऊपर डायरेक्शन में देख रहे हो, ये वाले जो कॉलम है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? वर्टिकल मोशन को, हॉरिजॉन्टल मोशन को और रोटेशन को. तो ये वाला जो है मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो है ये सपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो जैसे हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे, ये सपोर्ट में चेंजेस आएंगे. पहले हम रोलर सपोर्ट की बात कर रहे होंगे, फिर हिंज सपोर्ट की बात करेंगे, फिर फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में जो है यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन मोशन की बात करेंगे. पहले हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, फिर रोटेशन मोशन की बात करेंगे. ओके. नाउ सी, यहाँ पे भाई देखो, सबसे पहले रोलर सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द रोलर सपोर्ट. In the case of vertical motion, no vertical motion is allowed in case of roller support. जब रोलर सपोर्ट के केस में भाई कोई वर्टिकल मोशन अलाउ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा. इसका मतलब ही है कि कोई रेजिस्टिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, जो कि वर्टिकल में मोशन दे ही नहीं रहा है. ठीक है. वर्टिकल मोशन देने के लिए ये परमिट ही नहीं कर रहा रोलर सपोर्ट. तो इसीलिए एक रेजिस्टिव फोर्स यहाँ डेवलप होता है, जिसको हम रिएक्शन फोर्स बोलते हैं. और इस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में हमको एक रिएक्शन फोर्स मिलता है. वर्टिकल डायरेक्शन में केवल एक रिएक्शन फोर्स रोलर सपोर्ट के केस में. लेकिन आगे बढ़े, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देगा. रोलर है भाई, नीचे पहिए लगे हुए इसके. ठीक. रोलर सपोर्ट है तो ये आगे पीछे मोशन दे सकता है, मतलब मोशन के लिए ये फ्री है. हॉरिजॉन्टल मोशन अलाउ करता है रोलर सपोर्ट. जब हॉरिजॉन्टल मोशन अलाउ करेगा तो कोई रेजिस्टिव फोर्स लगेगा? यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो है, रिएक्शन फोर्स जीरो. तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा. अब रोलर है भाई. ठीक है. रोलर सपोर्ट पे रखा है, तो ये मोमेंट परमिट करेगा. तो मोमेंट परमिट करेगा तो जो रजिस्टिंग फोर्स एज ए मोमेंट जो हमको मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा. तो रोलर सपोर्ट के केस में हमको केवल और केवल एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा. घुमा फिरा के केवल रोलर सपोर्ट में हमको भाई केवल रोलर सपोर्ट के केस में कितने रिएक्शन फोर्स मिलेंगे? केवल और केवल एक. और वो भी किस डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है. वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक. अब हम बात करते हैं हिंज सपोर्ट की. हिंज सपोर्ट के केस में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कट किया हुआ है. तो इसके बाद रिएक्शन मिलेगा, रेजिस्टिंग फोर्स मिलेगा जो कि मोशन नहीं होने दे रहा है, तो एक आरवी मिल जाएगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन मिलेगा, कट किया नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब एक रेजिस्टिंग फोर्स जो कि नहीं इसको मोशन देगा वो आर एच हो जाएगा.
ठीक है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है तभी तो यहाँ कोई मोशन नहीं मिल रहा है। मोमेंट देगा ये, तो मोमेंट देगा तो यहाँ पे मोमेंट वाला नहीं मिलेगा। तो हमको यहाँ पे कुल मिला के हिंज सपोर्ट की बात करें या पिंड सपोर्ट की बात करें तो इस केस में हमको जो रिएक्शन मिलेगा वो 2 रिएक्शन मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, और मोमेंट क्या मिलेगा 0। ठीक, फिक्स सपोर्ट की बात करो, फिक्स सपोर्ट में ना वर्टिकल मोशन मिलेगा, ना हॉरिजॉन्टल मोशन मिलेगा, ना मोमेंट मिलेगा। ये कुछ अलाउ ही नहीं करेगा, परमिट नहीं करेगा। ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन देगा बीम को, ना वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए परमिशन देगा, ना रोटेशन के लिए परमिशन देगा। तो फिक्स सपोर्ट के केस में जो रिएक्शंस मिलेंगे 3 रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट। तो 3 रिएक्शंस हमको मिलेंगे फिक्स सपोर्ट के केस में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे शियर फोर्स डेफिनेशन लिखी है। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम में बी डिफाइंड एज algebraic sum of the transverse load including vertical reaction acting on either left or right। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, सारे फोर्सेज जो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 होने चाहिए, सारे फोर्सेज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 0 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हो आई थिंक, ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट में एक ही रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट है, एक रिएक्शन मिलेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो रिएक्शन मिलेगा वो दोनों नलीफाई हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये बीम है भाई, ठीक है, बीम है। इस बीम के सी पॉइंट पे हम एक क्रॉस सेक्शन कट कर लेते हैं। तो इस सी पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शन कट कर रहा है तो इसके लेफ़्ट साइड में एक W1 वेट लग रहा है, W2 लोड लग रहा है। तो इसका एक लेफ़्ट हैंड साइड है सेक्शन का, एक राइट हैंड साइड है सेक्शन का। या तो लेफ़्ट हैंड साइड में भाई जितने फोर्सेज लग रहे हैं, या तो लेफ़्ट हैंड साइड में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम कर लो, या राइट हैंड साइड में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उनका अलजेब्रिक सम कर लो। तो मान लेते हैं कि भाई लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेज लग रहे हैं उसका अलजेब्रिक सम कर ले रहे हैं। तो अलजेब्रिक सम कर ले रहे हैं तो जो ऊपर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव। तो इस तरीके से जितने भी फोर्सेज मतलब RA माइनस W1 माइनस W2, ये क्या हो जाएगा, ये शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सेक्शन सी पर। उसी तरीके से बेंडिंग मोमेंट में bending moment at any section of the beam may be defined as the algebraic sum of moment caused by transverse load। ठीक है, जो ट्रांसवर्स लोड जो मोमेंट देते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स लोड जो मोमेंट देते हैं, algebraic sum of moment caused by transverse load। ठीक, ट्रांसवर्स लोड जो मोमेंट देते हैं उनका algebraic सम या तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में या तो सेक्शन के राइट साइड में। ठीक, अब इसी सेक्शन में सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो ये RA कितना मोमेंट देगा, W1 कितना देगा, W2 कितना देगा, तो सबका मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसका अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे। तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज डैट ये कोई एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये रोलर सपोर्ट है, डी पॉइंट पे मोमेंट दे रहा है इस तरीके से, ए पॉइंट पे ये हिंज सपोर्ट है, रिएक्शन दे रहा है। मान लेते हैं बी पॉइंट पे कोई W1 लोड है और सी पॉइंट पे W2 लोड है। ठीक है, तो X1 पे एक हम सेक्शन कट कर लिए ए पॉइंट से और X2 पे सेक्शन कट कर लिए बी पॉइंट से। तो कुल मिला के हम सेक्शन बी और सी के बीच में कट किए हैं। उस सेक्शन की डिस्टेंस जो है बी से मान लीजिए X2 और ए से मान लीजिए X1। अब ए का मोमेंट निकालेंगे तो RA इंटू X1, बी का मोमेंट निकालेंगे तो W1 इंटू X2। तो दोनों का अलजेब्रिक सम निकाल लोगे तो तुमको जो है X पे इस सेक्शन के अलॉन्ग क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट C। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने आगे किया होगा। अब क्या किया, एक सेक्शन इन्होंने यहाँ पे कट कर लिया।
तो यहाँ पे कट कर लिया, तो ये 2 पे कट कर लिया, 2 पे कट कर लिया, तो बी वाला जो फोर्स लग रहा है वो x3 डिस्टेंस पे। तो अब 3 फोर्सेज है, एक आर ए, एक W1 बी पे, ठीक है, 2 फोर्सेज है। तो अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक सम ले लो मोमेंट का निकाल के, तो कुल मिला के जब हम करेंगे तो हमको जो मिलेगा, क्लॉक वाइज में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और एंटी क्लॉक वाइज में नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे, ठीक। तो कुल मिला के जब 3-3 सेक्शन पे हम जाएंगे, तो 3-3 सेक्शन पे जब हम जाएंगे तो आर ए जो मोमेंट देगा वो आर ए इंटू x4 देगा, वो क्लॉक वाइज सेंस में देगा। तो हम आर ए इंटू x4 ये देखो पॉजिटिव लिखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर W1 जो देगा वो x5 डिस्टेंस उसके लिए लिया गया है, तो W1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में, तो माइनस में लिखे हैं, ठीक है। उसी तरीके से W2 देगा x6 डिस्टेंस पे, वो भी माइनस साइन के साथ, वो भी देगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे सैगिंग हॉगिंग का एक थोड़ा सा नोट्स में, ये बीम का टॉप फाइबर है, ये बीम का बॉटम फाइबर है। जब इस बीम का एक सेक्शन कट करोगे और इसके यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट और इस पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मिलेगा, तो ये सैगिंग मिलेगा, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। और इसका जो टॉप फाइबर है वो कंप्रेशन फील करेगा और बॉटम फाइबर जो है वो टेंशन में रहेगा, ठीक। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे देख लो, ये वाला केस, इस पर जब सेक्शन कट करोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। तो ये इसका जो टॉप पोर्शन है वो टेंशन फील करेगा और जो बॉटम पोर्शन है वो क्या होगा, कंप्रेशन फील करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, हॉगिंग या नेगेटिव होगा, ठीक। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं। SFD के लिए लेफ़्ट टू राइट शियर फोर्स पॉजिटिव, लेफ़्ट टू राइट शियर फोर्स नेगेटिव, ये सब डिस्कस कर चुके हैं नोट से जैसे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे बताते हैं, कैंटिलीवर बीम का एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एम मोमेंट लग रहा है, फिर एम मोमेंट यहाँ पे लगेगा, इसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में मेंटेन करने के लिए, ठीक। कोई लोड लग रहा है, नो लोड लग रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिल जाएगी, ठीक। नो लोड मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, n = 0 डिग्री इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद तो हमको बेंडिंग मोमेंट कैसा मिलेगा, ये इस तरीके से मिलेगा, कांस्टेंट। इसी तरीके से यहाँ पे दोनों डायग्राम में देख रहे हो, इसमें पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, हॉकिंग, और पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, सैगिंग। यहाँ इस केस में 5 मीटर का मोमेंट ए पॉइंट पे, फिर बी पे 8 मीटर का, ठीक, बी पे 8 मीटर का, फिर सी पे 10 का मोमेंट लग रहा है, फिर 7 पे, डी पे 7 का मोमेंट लग रहा है। और टोटल कितने मोमेंट लग रहे हैं इधर, 5 क्लॉकवाइज, 5 10 8 18 7 18 7 18 25 + 5, तो यहाँ पे 30 का एक मोमेंट इधर लगेगा काउंटर क्लॉकवाइज में, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए, ठीक। कोई लोड लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से, ठीक। अब शियर फोर्स डायग्राम इस तरीके से मिल गया, तो भाई हमको फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ए पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 5, तो मोमेंट एट ए पॉइंट कितना है, 5। कौन सा सेंस में दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव, ठीक है। फिर ए से बी तक मोमेंट कितना है, 5 ही है, पॉजिटिव। अब बी पॉइंट पे पहुँचे, बी पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए ए पॉइंट कितना दे रहा है, बेंडिंग मोमेंट 5, बी पर कितना है, बेंडिंग मोमेंट दे रहा है 5,
क्लॉकवाइज ही तो 8 हो जाएगा। तो इस क्रॉस सेक्शन पे पेंडिंग मोमेंट अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा 13, तो ये 13 हो गया। बी से सी कांस्टेंट, फिर सी पॉइंट पे पहुँचे तो ये 10 मीटर और दे रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, तो 10 और जुड़ जाएगा। 10 पाँच 15, 8 23, तो 23 में 23 हो जाएगा। फिर डी, सी से डी में कांस्टेंट, फिर आगे ये अब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, ठीक है 7, तो और ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30, फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से ये वेरी करेगा यहाँ तक, ठीक है। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो इसलिए सैगिंग मोमेंट है। इस केस में मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट जो होगा 0 होगा, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट कितना होगा 30 m होगा। इज इट क्लियर? अगर हम इसका अलग अलग मेंबर का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए अलग अलग मेंबर का, तो अगर ए बी मोमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ए पर मोमेंट कितना है 5, बी पर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए कितना होगा 5 होगा, ठीक। फिर बी सी का बनाए तो ये कितना है 13, ये कितना होगा 13, फिर सी पर 23, डी पर एंटी क्लॉकवाइज में 23, फिर डी पॉइंट पे 30, फिर ई पॉइंट पे 30 मोमेंट 30 m का मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ठीक है। अब एक काम करो, ये ए बी है और ए बी को इस बी और इस बी को ओवरलैप करा दो बी पे, तो बी और बी आपस में मिलेंगे यहाँ पे, तो बी का 5 मोमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज -5 और 13 क्लॉकवाइज +13, 13 -5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बी पे जो है तुम्हारा यहाँ पे 8 मोमेंट आना चाहिए, आ रहा है ना, एकदम आएगा। तो हम क्या किए, एक बार ए बी का एफ बी डी ड्रा किए, बी सी का एफ बी डी ड्रा किए, दोनों का एफ बी डी मिला दिए, तो हमको इस पर मोमेंट मिल जाएगा जॉइंट पे 8 m। ये कॉन्सेप्ट हुई एफ बी डी का, ये पहले एफ बी डी बनाते फिर रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये वाला डायग्राम है। इस वाले डायग्राम में देखो कॉमन रिलेशनशिप्स है। सबसे पहले हम बात कर लें, ये लोड है, लोड वाला रो है, ये शियर फोर्स डायग्राम वाला है, ये मोमेंट है, फिर यहाँ पे लोड है, शियर फोर्स मोमेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो किसी बीम पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो जो उसका एस एफ जी ड्रा होगा वो n = 0 डिग्री इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और जब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बनेगा पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में, तो जो बी एम डी बनेगा वो n = 1 डिग्री इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, लीनियर में बनेगा, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप मतलब ये है कि वैल्यू आपकी घट रही है या बढ़ रही है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कांस्टेंट लोड की, यूडीएल की। जब ये डायग्राम बीम पे यूडीएल लगा होता है तो उस केस में जब आपका एसएफडी बनता है तो ये इंक्लाइन लाइन बनता है विद पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, y = mx + c होता है, तो n = 1 डिग्री इक्वेशन होता है। इसी तरीके से जब इसका एसएफडी ऐसे बनता है तो बीएमडी में डिफरेंट मोमेंट की वैल्यू पे ये 2 डिग्री डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है और ये पैराबोला बन जाता है, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो एसएफडी जो है उसका पैराबोलिक बनेगा, और जो कि n = 2 डिग्री होता है जब यूएल रहता है, ठीक है, एसएफडी में। और वही चीज़ n = 3 डिग्री ग्राफ बन जाएगा जब यूएल है, मतलब क्यूबिक बन जाएगा, ठीक। तो हमको ये समझ में आया, अभी तक जो बात हमको समझ में आई वो कुल मिला के ये समझ में आई, अगर आपके प्रॉब्लम में है, इफ़ इन योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एक लाइन डायग्राम देगा, ठीक है, जो कि क्या होता है n = 0 डिग्री इक्वेशन होता है, ठीक। अब बात आती है कि भाई जो पैराबोला हम बनाते हो पॉजिटिव स्लोप या नेगेटिव स्लोप का कैसे बनाते हो। एक इक्वेशन होता है एरिया निकालने के लिए, a = 1/n + 1 ×
बी एच, एन की वैल्यू 0 रख दो तो ये बी एच आता है, एक रेक्टेंगल आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लाइन ड्रा करते हैं, तो इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का होता है, ठीक। आई थिंक क्लियर है। फिर इसी तरीके से भाई यहाँ पे अगर लोड की बात करें, यहाँ मोमेंट लग रहा है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, फिर केवल मोमेंट लग रहा है तो कांस्टेंट रहेगा। शियर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगा, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिर इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे लास्ट एंड पे अगर लोड लग रहा है तो इस तरीके से कांस्टेंट और फिर लीनियर। और फिर यहाँ पे यूडियल की बात करें तो ये लीनियर, ये पैराबोलिक। ओके, अब बाद में इसकी जो प्रॉब्लम पैराबोला की साइन की बात करें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप कैसे बनता है, वो हम एक न्यूमेरिकल के बिहाफ पे आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। ओके, थैंक यू।